مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ گمراہ کن اطلاعات کی نشاندہی کرے۔ مرکز نے سوشل میڈیا سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ گمراہ کن اطلاعات کی نشاندہی کے لیے پوری توجہ سے کام لیا جا رہا ہے اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت نے کہا ہے کہ ایسے کیسوں کے خلاف 2021 کے آئی ٹی ضابطوں کے تحت مقررہ وقت کے اندر بہت تیزی سے کارروائی ہونی چاہیے۔ ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے مواد کی اطلاع دیے جانے کے 36 گھنٹے کے اندر اسے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ٹی قانون اور ضابطوں پر عمل کرنے میں کسی طرح کی ناکامی پر 2021 کے آئی ٹی ضابطوں کا 7واں ضابطہ لاگو ہو جائے گا اور تنظیم کو آئی ٹی قانون کی دفعہ 89 ایکٹ کے تحت حاصل تحفظ ختم ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے انتخابی مہم کے سلسلے میں مکتل کا دورہ کرتے ہوئے BRS امیدوار چٹم رام موہن ریڈی کے مکان میں منعقدہ انتخابی اجلاس میں مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مسلمانوں کے دوست اور ہمدرد ہیں۔ BRS کی دور اقتدار میں کہیں پر بھی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے۔ تلنگانہ کا ماحول گنگا جمنی تہذیب کی مثال ہے۔ BRS اور مجلس اتحاد المسلمین کی گردن کاٹنے پر بھی BJP کا ساتھ نہیں دیں گی۔ کانگریس پارٹی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے BRS اور مجلس پر BJP کا ساتھ دینے کی افواہ پھیلا رہی ہیں۔ کے چندر شیکھر راؤ نے اقلیتوں کے لیے تعلیمی میدان میں ترقی کی غرض سے 204 اقلیتی اقامتی اسکول قائم کیے۔ ان اقامتی اسکولوں کے لیے 3000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اوورسیز اسکالرشپ کے تحت اب تک 3300 طلباء کو مستفید کیا گیا۔ اقلیتوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقلیتی مائنرٹی بندھو کے تحت امداد کی گئی۔ عنقریب اقلیتی بجٹ 3000 کروڑ کیا جائے گا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں ہمیشہ فسادات ہوئے۔ کانگریس پارٹی مسلمانوں کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ پھر کانگریس پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو فسادات ہوں گے۔ انہوں نے BRS کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جابر بن سعید کوآرڈینیٹر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس پارٹی مکتل کے BRS کے امیدوار چٹم رام موہن ریڈی کی تائید کرتی ہیں۔ مسلمانوں سے اپیل کی کہ BRS امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ امتیاز اسحاق صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور رکن اسمبلی مکتل چٹم رام موہن ریڈی نے بھی اس موقع پر مخاطب کیا۔ اس موقع پر صدر مجلس ضلع نارائن پیٹ عبدالقادر محمد اسماعیل، ضلع جنرل سیکریٹری نارائن پیٹ محمد پاشا، ٹاؤن صدر اٹکور عبدالمنیر، مقبول احمد، ڈاکٹر لیاقت علی، احمد ہزاری، محمد زاہد علی، معین الدین، جمشیر علی، انور حسین، احمد ہزاری، ریاض عبدالمنان، صادق سید مظہر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ترقی کی رائے جس طرح چل رہی ہے اسی طرح چلتے رہیں گی۔ مجھے جو ووٹ دیا گیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام خاندان کو دل کی کوئی معافی بھی چاہتا ہوں کیونکہ 3 بج رہے ہیں، اب 1:30 بجے تک 2 بجے تک بند کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کار کے نشان کو ووٹ دے کر آلے وینکٹیش ریڈی صاحب کو بھاری میجر سے جتائیے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی بات خدا جی تلنگانہ ایسی کون ہے 4 کروڑ مسلمانوں کا بجٹ 1782 کروڑ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بہار کے اندر 1 کروڑ 77 لاکھ مسلمان بستے ہیں، وہاں کا بجٹ 700 کروڑ روپے ہے۔ اسی طرح کیرلا کے اندر 92 لاکھ 16 لاکھ مسلمان 92 لاکھ 16,000 مسلمان بستے ہیں، وہاں کا بجٹ 575 کروڑ ہے۔ مہاراشٹر کے اندر 1 کروڑ 40 لاکھ مسلمان بستے ہیں، وہاں کا بجٹ 674 کروڑ ہے، 674 کروڑ ہے۔ جھارکھنڈ کے اندر 62 لاکھ مسلمان بستے ہیں، ان کا بجٹ 320 کروڑ ہے۔ تلنگانہ کے اندر 50 لاکھ مسلمان بستے ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مسلم بھائیوں، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ KCR مہان اور مہاتما لیڈر ہے، وہ آپ کی ترقی چاہتے ہیں۔ تلنگانہ میں ان کا بجٹ کتنا ہے؟ 2200 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ آپ بتائیے کتنا اچھا بجٹ ہے۔ CM صاحب نے اعلان کیا ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں سے کہتا ہوں ہمیں اچھے لیڈر کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ CM صاحب ایک نرم دل انسان ہے، ہمیں 56 انچ کا سینہ نہیں چاہیے، ہمیں 6 انچ کا دل چاہیے، نرم دل چاہیے جو KCR صاحب کا ہے۔ وہ ہمیشہ تلنگانہ عوام کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اوورسیز اسکالرشپ کے دائرے میں ہمارے امتیاز بھائی اور وینکٹیش بھائی نے بتایا
मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ते तो 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो नाम निकलने बोले। आज हमारे 3,400 से ज्यादा बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को अब अपने हकीकी अवामी व इंतखाबी मौक़िफ़ का अंदाज़ा होने लगा है और पार्टी ये महसूस कर चुकी है कि वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान तीसरा मुकाम भी हासिल करने में शायद कामयाब नहीं होगी। बीजेपी एक वक्त था जब रियासत में इख्तिदार हासिल करने के ख्वाब देख रही थी। ताहम कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को कहीं पस मंजर में ढकेल दिया है। बीजेपी को भी अवामी मोड का अंदाजा हो गया है और उसने भी अपनी हिकमत अमली बदलते हुए किसी भी कीमत पर कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने की हिकमत अमली तैयार की है ताकि मुअल्लक असेंबली की सूरत में बीआरएस की तायद करते हुए इख्तिदार में हिस्सेदारी के ख्वाब को पूरा किया जा सके। बीजेपी को ये भी अंदाजा हो रहा है कि वो अपने दम पर तो इतना भी नहीं कर पाएगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने तेलुगु अदाकार पवन कल्याण की तायद हासिल करने का फैसला किया है। पवन कल्याण और बीजेपी में तेलंगाना के लिए इंतखाबी मुफाहमत हो चुकी है। हालांकि पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर चुके हैं। चूंकि तेलुगु देशम ने मुखालिफ हुकूमत वोट की तकसीम रोकने के तेलंगाना में इंतखाबात ना लड़ने का फैसला किया है, ऐसे में बीजेपी पवन कल्याण को अपने साथ मिलाने में कामयाब रही है। हालांकि पवन कल्याण की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कोई ज्यादा सियासी अहमियत नहीं है और आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पवन कल्याण ने 2 हलकों से मुकाबला किया था और दोनों ही हलकों से उन्हें शिकस्त हो गई थी। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में इनसे फायदे की उम्मीद रखे हुए हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेलंगाना में भी पवन कल्याण के पुरस्कारों की खातिर ख्वाह तादाद मौजूद हैं जो उनकी फिल्मों की दिलदादा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जहां वो खदरे मुस्तहकम मौकूफ में है, वहां पवन कल्याण के चंद हामियों का वोट अगर उसे मिल जाए तो फिर वो कामयाब हो सकती हैं और 2 हिंसी नशिस्तों तक पहुंचने के बाद इख्तिदार में हिस्सेदारी के लिए बीआरएस से मुफाहमत कर सकती हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत की 119 असेंबली हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी है। इस मौके पर उम्मीदवार भारी मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और पदयात्रा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। उनके जुलूस में 50 से ज्यादा बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और बीजेपी ज़ेर क़यादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिशें की गई थी और आज तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार नंदिशोर गौड़ ने बुलडोजर के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के झोंसी थाना इलाके में रहने वाले एक वकील के घर को मुनहदम करने के मामले में समाअत के दौरान प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) को फटकार लगाई है। एडवोकेट अभिषेक यादव ने झोंसी इलाके में अपने मकान को गिराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बुध को इस मामले की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी नहीं है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से जवाब तलब करने के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए हुकाम को भी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि एक घर की ईंट लगाने में कई साल लग जाते हैं और हुकाम इसे तोड़ने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं है। फिलहाल इस केस की समाअत 20 नवंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जोनल अफसर संजीव उपाध्याय ने अपना फरीक पेश करते हुए कहा कि वकील के घर को गिराए जाने के अगले ही दिन हाईकोर्ट में समाअत हुई। उन्हें कोई इत्तला या नोटिस नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने सवाल करते हुए कहा कि अगर आप किसी का घर गिराने के लिए बुलडोजर लेकर खड़े हो जाएंगे तो इसके लिए मुमकिन नहीं कि वो आपको केस की इत्तला भी ना दें, और वो भी जब वकील हो। दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और आलमी बिरादरी से जंग बंदी का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। बेंगलुरु में फ़लस्तीन की हिमायत में खामोश एहतजाज किया गया। पुलिस ने मुजाहरे की इजाज़त ना लेने पर फ़लस्तीन की हिमायत में खामोश एहतजाज में शिरकत करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की हैं। एहतजाजी अफराद के खिलाफ मुकदमा बुध को दर्ज किया गया।
5 नवंबर को शहर के सेंट मार्क्स रोड पर होने वाले एहतजाज में शरीक होने वाले अफराद ने गजा में इसराइल और हमास की जंग के तनाजुर में फलस्तीन की हिमायत करने वाले पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज के बायस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पुलिस की जानिब से IPC की दफ़ा 149 गैर कानूनी जमा होना, 188 सरकारी मुलाजिम के जरिए जारी करदा हुक्मनामे की नाफरमानी करना, 283 खतरा या अवामी रास्ते में रुकावट, 290 अवामी परेशानी और 291 अवामी परेशानी का एदिया के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद गजा पर इसराइल की लगातार बमबारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। इन एहतजाजी मुजाहरों में इसराइली हमास के दरमियान जारी जंग को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान जंग बंदी का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है और इसराइल को आम शहरियों, बच्चों और खवातीन की हलाकतों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जुमेरात को भी आलूदगी की सतह संगीन जुमरे में दर्ज की गई। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क की राजधानी को आलूदगी के संगीन खतरे का सामना है। पराली और गाड़ियों के धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा के मेयार का औसत इंडेक्स सुबह तकरीबन 426 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुध को हवा के मेयार का औसत इंडेक्स 426 और मंगल को 395 रिकॉर्ड किया गया था। CPCB के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में AQI 432, RK पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444, ITO 441, ASIT द्वारका में 425, द्वारका सेक्टर में 8 में 462, नजफगढ़ में 451, IGI एयरपोर्ट में 445, मंडका में 427, पोसा में 428 दर्ज किया गया है। लोधी रोड में AQI 387 रिकॉर्ड किया गया। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में आलूदगी को रोकने के लिए ग्रुप 4 पाबंदियां नाफिज हैं। स्कूल भी आज से 18 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। मोगादिशु सोमालिया में मूसलाधार बारिशों के पैदा करदा सैलाब के नतीजे में 29 अफराद हलाक और 3 लाख से जायद बेघर हो गए हैं। सोमालिया महकमे आफात SODMA के सरबराह मोहम्मद मौलिन अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में मूसलाधार बारिशों ने तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासिर किया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि जोबोलेंड और जुनूब मगरबी सूबों समेत खास तौर पर गेडो, बालाएं और बाकोल के इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी रैलियों का सामना है। सैलाब ज़दा इलाकों में 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और अपना घर बार तर्क करने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाब की वजह से होने वाले जानी नुकसान के बारे में उन्होंने कहा है कि इस वक्त तक 29 अफराद की लाशें मिली हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।